یوٹیوب چینل ڈان نیوز ایڈیٹوریلز. اچھا، جو ہم ڈان کا ایڈیٹوریل کر رہے ہیں وہ ہے سعودی انویسٹمنٹ. اب تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس میں سعودی والے ہیں، انہوں نے جو وعدہ کیا ہے کہ جی ہم تقریباً کوئی $5 بلین جو ہے نا وہ پاکستان کو دیں گے، اور اس میں وہ ایک تو یہ $5 بلین یہ ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس اس کی ملٹری بیک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل. تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم جو ہیں وہ کوئی $25 بلین دیں گے پاکستان کو، ٹھیک ہے. اور جو زیادہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ جو فنڈز ہیں نا وہ یوز ہوں گے مائننگ میں، اور خاص طور پہ ریکوڈک پروجیکٹ میں. تو جس طرح پاکستان کی جو ہے معاشی حالت وہ اتنی بہتر نہیں ہے، تو کہیں سے بھی خاص طور پہ سعودی عرب سے جو ہے نا کچھ اس بات کا امکان کہ وہاں سے کوئی انویسٹمنٹ آئے گی، تو یقیناً یہ خوش آئند بات ہے. لیکن یہ ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں بھی پہلے وعدہ کیا گیا تھا کہ اتنے جو آئے گی اس میں انویسٹمنٹ، تو وہ اس طریقے سے نہیں آئی تھی. تو اب دیکھنا ہے کہ یہ جو پلیج کیا گیا ہے اس سے پاکستان کی معیشت پہ کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جی considering the decades-old ties between Pakistan and Saudi Arabia, it is not surprising that Prime Minister Shehbaz Sharif chose to visit the kingdom as his first foreign destination since returning to power. ان کا یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ دہائیوں پہ محیط جو تعلقات ہیں پاکستان اور سعودی عربیہ کے، تو یہ بالکل بھی حیران کن نہیں تھا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے ہے نا وہ انتخاب کیا وزٹ کرنے کا، دورہ کرنے کا اس کنگڈم کو، سعودی عربیہ کو، اپنے پہلے فورن ڈیسٹینیشن کے حوالے سے، جو غیر ملکی دورہ تھا اس حوالے سے، سنس ریٹرننگ ٹو پاور، کہ جب یہ دوبارہ اس میں پاور میں آئے تو اس نے انتخاب کیا اس وجہ سے سعودی عربیہ کا، یہ جو دہائیوں پہ محیط جو ہمارے تعلقات ہیں اس کے ساتھ، سعودیہ کے ساتھ، ٹھیک ہے. اچھا، اب کہیں گے جی along with visiting the holy cities of pilgrimage, Mr. Sharif met Crown Prince Mohammed bin Salman, the kingdom's de facto ruler in Makkah on Sunday. میں نے کہا اس کے ساتھ جو ہے نا وزٹ کرنے کے، دورہ کرنے کے ساتھ ہی جو انہوں نے دورہ کیا تھا جو مقدس مقامات تھے پلگرمیج کے حوالے سے، ہولی جرنی کے حوالے سے، مسٹر شریف وہاں پہ اس نے کیا ہے میٹ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے، وہاں ملے کراؤن پرنس ایم بی ایس محمد بن سلمان سے. اور یہ کون ہے؟ دا کنگڈمز ڈیفیکٹو رولر، اور یہ کنگڈم کے ڈیفیکٹو رولر ہیں. اب یہاں پہ آپ کو فرق پتہ ہونا چاہیے، ایک ڈیفیکٹو ڈی جیور ہے. ڈیفیکٹو ہوتا ہے انفیکٹ، اور ڈی جیور ہوتی ہے جس کی لیگل اتھارٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ کہاں پر ملاقات ہوئی؟ مکہ میں ہوئی. اور کب ہوئی؟ سنڈے کو ہوئی. ویرائٹی آف ٹاپکس وere discussed between the two leaders، اور ان کا مختلف جو ہے نا وہ ٹاپکس وہ ڈسکس کیے گئے، بات چیت کی گئی دونوں لیڈرز کے درمیان. Perhaps the most important points from the joint readout issued after the meeting were talk of expediting Saudi investment in Pakistan and Riyadh's desire to see peace and stability in the subcontinent. اور انگلش شہر جو سب سے امپورٹنٹ جو پوائنٹ جو تھے جو ہمیں جوائنٹ ریڈ آؤٹ دیکھنے کو ملا، اس کا مطلب ہوتا ہے مطلب مشترکہ اعلامیہ کہہ لیں، جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ جو تھی، اور وہ کب جاری کی گئی، وہ میٹنگ تھی اس کے بعد جو جاری کی گئی، اس میں کہا گیا تھا کس طرح ایکسپیڈائٹ کیا جائے، تیز کیا جائے سعودی انویسٹمنٹ کو پاکستان میں، اینڈ ریاض ڈیزائر ٹو سی پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان دی سب کانٹیننٹ، اور جو ریاض کی خواہش ہے کہ کس طرح امن اور استحکام آئے سب کانٹیننٹ میں، بر صغیر میں، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ بتا رہے ہیں اماؤنٹ کے حوالے سے، اس طرح شروع میں آپ کو بتایا کہ $5 بلین کا جو ہے نا وہ پلیج کیا گیا ہے. کہہ رہیں گے جی the figure mentioned for Saudi investment after the meeting was $5 billion، اور جو فگر مینشن کیا گیا سعودی انویسٹمنٹ کے حوالے سے میٹنگ کے بعد وہ جو تھا وہ تھا $5 بلین کا. Earlier the Saudis had pledged to bring $25 billion to Pakistan through the military-backed Special Investment Facilitation Council، اور اس سے پہلے جو ہے نا سعودی انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ $25 بلین لائیں گے پاکستان میں ملٹری بیک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے ذریعے. It has not been specified where Riyadh will put its money، اور ابھی اس میں اس طرح نہیں پن پوائنٹ کیا گیا کہ بھائی یہ سعودی عرب والے ہیں وہ اس کو کس سیکٹر پہ یہ پیسے لگائیں گے. بٹ اٹ از سیڈ، لیکن یہ کہا جاتا ہے the Saudi funds could end up in mining، کہ وہ سعودی فنڈز ہیں نا وہ وہاں پہ استعمال ہو سکتے ہیں مائننگ سیکٹر میں، اسپیسیفکلی ریکوڈک پروجیکٹ، اور ریکوڈک پروجیکٹ کے حوالے سے وہاں پہ یوز ہو سکتے ہیں. While the Arab state is also reportedly interested in other sectors، اور ریکوڈک مائننگ کے حوالے سے تو بات ہوئی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا جو عرب اسٹیٹ ہے نا وہ انٹرسٹڈ ہے کہاں پہ دوسرے سیکٹرز کے حوالے سے بھی، صرف مائننگ میں نہیں ہے. Meanwhile, the importance of dialogue between Pakistan and India was stressed during the meeting, indicating a possible Saudi role to facilitate the escalation of tensions in South Asia. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا وہ اس چیز پہ بھی جو ہے نا اس اہمیت کو جاری کیا گیا کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے نا وہ کتنی امپورٹنس ہے اس چیز کی کہ
बातचीत हो, डायलॉग हो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। ये ऐसा इस मीटिंग में कहा गया और ये भी उन्होंने कहा कि किस तरह जो है ना वो सऊदी हुकूमत अपना रोल अदा कर सकती है कि एक वो सहूलतकारी करे, किस हवाले से de-escalation के हवाले से अ अ, de-escalation ऑफ टेंशन्स की, और टेंशन में जो शिद्दत है उसमें de-escalate करे, उसमें कमी लाए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, यहाँ पे साउथ एशिया में, जनूबी एशिया में। Various figures for Saudi money have been cited several times, and talk of major investments goes back to the time of the PTI government. अब जिस समय पे पहले आपको बताया कि जी अभी इन्होंने $5 बिलियन की बात की है, इससे पहले भी जो है ना वो पीटीआई के दौर में भी सऊदी इन्वेस्टमेंट की बात होती रही है। तो उन्होंने कहा मुख्तलिफ फिगर्स जो है ना सऊदी मनी के हवाले से कि भाई कितने सऊदी जो है ना वो पैसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट देनी है, उसको भी साइड किया गया था, हवाला दिया गया था कई दफ़ा, और मेजर इन्वेस्टमेंट्स की बात की गई थी। और ये बात जो है ना वो पीटीआई के टाइम तक जाती है, उनकी हुकूमत के टाइम पे जब कहा जाता था कि भाई इतने इन्वेस्टमेंट आएगी सऊदीया से, बट अदर देन बेल आउट्स एंड इमरजेंसी डिपॉजिट्स, लेकिन उन्होंने कहा सवाए बेल आउट्स के और इमरजेंसी डिपॉजिट्स के लिटिल सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन मेड, लेकिन उन्होंने कहा ना के बराबर जो है ना वो कोई बड़ी पैमाने पे इन्वेस्टमेंट जो है ना वो की गई है। परहैप्स विद अ न्यू गवर्नमेंट इन पावर दिस फंड्स विल स्टार्ट टू मटेरियलाइज़, उन्होंने कहा शायद जो नई गवर्नमेंट जो है ना पावर में है तो ये फंड जो है ना वो विल स्टार्ट टू मटेरियलाइज़, यानी कि वो मटेरियलाइज़ होना, यानी वो मिलना शुरू हो जाएँ ये नई गवर्नमेंट के आने के बाद। अच्छा। अब ये तो उन्होंने बात कर दी कि कितने पैसे हैं, पहले भी कोशिश की जाती रही थी, अब दोबारा आते हैं कि नहीं आते, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे बट वेदर इट इज़ द सऊदीज़ और समवन एल्स, इफ यू वांट फॉरेन कंट्रीज़ टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, 3 थिंग्स आर एसेंशियल। तो उन्होंने कहा फिर चाहे वो सऊदी हों या कोई और हो, अगर हम चाहते हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ हैं, वो इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में, तो 3 चीज़ें वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और उसको अगर हम हाइलाइट करें तो एक तो कह लेंगे जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सियासी इस्तेहकाम, फिर इसके अलावा सिक्योरिटी गारंटीज़, ये नंबर 2, और तीसरी चीज़ जो है वो है कंटिन्यूटी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जो तसलसल है किस चीज़ का? माशी पॉलिसीज़ का। तो उन्होंने कहा ये 3 चीज़ें हैं ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी गारंटीज़ एंड कंटिन्यूटी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़। तो फिर चाहे सऊदी अरब हो या कोई भी हो, ये इन्वेस्टमेंट के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। Unless there is continuity and consonance all these fronts, few will be willing to put their funds into Pakistani projects. तो उन्होंने कहा जब तक ये कंटिन्यूटी ना हो, तसलसल ना हो, कॉन्सोनेंस ना हो, हार्मनी ना हो, एग्रीमेंट ना हो, इन सारी चीज़ों में, ये 3 पॉइंट्स गिनाए हैं आपको, फ्यू विल बी विलिंग, तो उन्होंने कहा ना के बराबर बिल्कुल, फ्यू विल बी विलिंग टू पुट देयर फंड्स इनटू पाकिस्तानी प्रोजेक्ट्स, यानी कि हमें ज़्यादा लोग मिलेंगे नहीं जो चाहेंगे कि वो अपने फंड्स जो है ना पाकिस्तानी प्रोजेक्ट्स में लगाएँ, क्योंकि ये 3 चीज़ें जो है ना वो यकीनन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ठीक है? अच्छा, अब कह रहे हैं जी the potential for investment in several sectors is considerable. The issue is that the state has to address the barriers that stand in the way of attracting foreign investment and create a pro-business environment minus the red tape and corruption. और इनका जो पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट का मुख्तलिफ सेक्टर्स में वो कंसिडरेबल है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है ना पोटेंशियल है कि हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकती है मुख्तलिफ सेक्टर्स में। द इशू इज़ दैट द स्टेट हैज़ टू एड्रेस द बैरियर्स दैट स्टैंड इन द वे ऑफ अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लेकिन इनका मेन बात यह है कि स्टेट को जो है ना वो हल निकालना होगा उन बैरियर्स का, उन रुकावटों का जो रास्ते में है, ये जो रुकावट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे पाकिस्तान में लाने को, एंड क्रिएट अ प्रो बिजनेस एनवायरनमेंट, और साथ ही साथ जो है ना वो एक प्रो बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करनी होगी कि जो क्या है बिजनेस को फैसिलिटेट करे, इन लोग नया बिजनेस यहाँ पे आके शुरू कर सकें, उसको ज़्यादा जो है ना वो आगे ले जा सकें, माइनस रेड टेप, और रेड टेप ना हो, रेड टेप तो बहुत ज़्यादा आप इस तरह के लिए फॉर्मल रूल्स रेगुलेशंस जो बहुत ज़्यादा सख्त हों, ठीक है? तो मतलब आपने देखा होगा, आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, कोई चीज़ है, तो इतनी ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस आ जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, करप्शन आ जाती है, नेपोटिज़्म आ जाता है कि आप उस तरीके से आगे ले जा नहीं सकते। तो ज़ाहिर है जब इतनी ज़्यादा मुश्किलात होंगी, बिज़नेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं होगा, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि इन्वेस्टमेंट आए। तो ये बात बता रहे हैं कि अगर वाक़ई चाह रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए, तो यहाँ पे हमें इसका जो है ना रेड टेप का, करप्शन का खात्मा करना होगा। ठीक है? अच्छा। Also, if foreign players invest in Pakistan, they will not be looking to dole out charity. और इनका साथ-साथ हमें ये भी ध्यान में रखना होता है, क्योंकि ज़ाहिर है कोई भी मुल्क जो है ना वो वहाँ पे इन्वेस्ट जब करता है किसी भी मुल्क में, तो वो सिर्फ चैरिटी के तौर पे नहीं दे रहा होता, खैरात के तौर पे नहीं दे रहा होता, वो अपना भी फ़ायदा देख रहा होता है कि भई अगर हमें इतने पैसे यहाँ पे लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन रिटर्न हमें क्या मिलेगा? तो ऑल्सो इफ फॉरेन प्लेयर्स इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, दे विल नॉट बी लुकिंग टू डोल आउट चैरिटी, दे विल कम टू मेक मनी। वो ज़ाहिर है वो जो आएँगे तो वो चाहेंगे कि वो पैसा बनाएँ, व्हिच इज़ व्हाई प्रॉफिट रिपैट्रिएशन मस्ट बी स्मूथ टू इंश्योर कंटिन्यूड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लिहाज़ा उन्होंने कहा कि जो प्रॉफिट रिपैट्रिएशन है, कि जब आप प्रॉफिट यहाँ से कमाते हो, इसको यहाँ पे दूसरे मुल्क लेके जाना है। जिस तरह क्योंकि हमारे फॉरेन करेंसी रिज़र्व्स का इश्यू आ गया था, तो पिछले साल आपने देखा होगा कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ थी, उन पे आप
का पाबंदी थी पैसे बाहर ले जाने की, एक उसमें लिमिट लगा दी गई थी कि जो फॉरेन करेंसी है वो बाहर ना जाए। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने ऐसा करना है, इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, तो आपको प्रॉफिट रिपैट्रिएशन जो है ना वो बड़ी स्मूथ होनी चाहिए। ये नहीं कि आप उनके पैसे ब्लॉक करके बैठ जाओ, फिर जो है ना वो कंटिन्यू फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी। फ्यू बिलियन डॉलर्स विल हार्डली टर्न अराउंड आवर इकोनॉमी, और उन्होंने कहा कुछ बिलियन डॉलर्स जो है ना विल हार्डली टर्न अराउंड आवर इकोनॉमी, यानी वो मददगार साबित नहीं होंगे हमारी इकोनॉमी को, हमारी मईशत को टर्न अराउंड करने के, यानी उसमें तब्दीली लाने के। What is needed is long-term thinking by all stakeholders to help Pakistan break the shackles of dependence and realize its economic potential. और निका जिसकी चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग हो, कि हम देखें कि भाई क्या इसको करना है, और तमाम स्टेक होल्डर्स जो है ना वो देखें कि भाई लॉन्ग टर्म थिंकिंग हो कि हमने किस तरह की पॉलिसी बनानी है, किस तरीके से आगे लेके चलना है कि पाकिस्तान जो है ना वो ब्रेक करे, तोड़े शैकल्स ऑफ डिपेंडेंस, ये जंजीरें हैं डिपेंडेंस की इन्हिसार करने की, एंड रियलाइज दिस इकोनॉमिक पोटेंशियल, जो जितना भी इसमें पोटेंशियल है माशी तौर पे उसको क्या है रियलाइज किया जा सके, उसको हासिल किया जा सके। एज फॉर सऊदी मीडिएशन इन आवर डिस्प्यूट विद इंडिया, और जहाँ तक सऊदी मीडिएशन के ताल्लुक है कि वो अपना हिस्सा अदा करेंगे उस डिस्प्यूट में जो हमारा इंडिया के साथ है, दिस शुड आल्सो बी सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जियो इकोनॉमिक्स। होने का ये भी देखा जाना चाहिए किस तनाजुर में, जियो इकोनॉमिक्स के तनाजुर में, ठीक है, जो आप इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हो जियो पोलिटिकल फैक्टर्स के बेसिस पे। Riyadh is eyeing a $100 billion dollar investment plan in India and wants peace in the neighborhood. उन्होंने कहा रियाद जो है ना वो देख रहा है कि जी $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट प्लान इंडिया में, और वो चाहता है कि पीस हो नेबरहुड में, हमसाया ममालिक में। It remains to be seen if the allure of Arab money can convince India's leadership to talk peace with Pakistan. उन्होंने कहा ये देखना बाकी है क्या ये allure है, चार्म है अरब मनी का, $100 बिलियन का, वो कन्विंस करेगा इंडिया की लीडरशिप को कि वो बातचीत करे पाकिस्तान के साथ अमन को किस तरह यहाँ पे अमन हो सके पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। तो बता रहे हैं कि किस तरह जो सऊदी अरब है वो $100 बिलियन वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया में, तो हो सकता है वो चाहता है कि वो ज़ाहिर है कि खत्ते में अमन हो, तो वो भी $100 बिलियन तभी वो लगाएगा कि वो कोशिश करेगा किस तरह पाकिस्तान और इंडिया जो है ना आपस में जो है वो ताल्लुकात में बेहतरी आए। तो उन्होंने कहा क्या ये जो पैसे हैं $100 बिलियन के, उसका जो चार्म है वो कन्विंस करेगा इंडियन लीडरशिप को कि वो पाकिस्तान के साथ जो है ना वो अमन की बात कहे। ठीक है, ये था आज का हमारा एडिटोरियल। बाकी आपने हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0306 436 8023 या इसी पे आप जो है ना वो व्हाट्सएप करके हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। ₹200 पर मंथ इसके चार्जेस हैं। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।